ایک ایسا دور جب زمین پر ہدایت کا نور مدھم پر گیا تھا اور شیطان نے انسانوں کو ایک ایسے خوفناک فریب میں مبتلا کر دیا تھا جس کی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ ایک بہت بڑا مجسم جس کی چمک اور ہیبت نے طاقتور بادشاہوں اور عام لوگوں کی آنکھوں پر اندھے پن کی پٹی باندھ دی تھی۔ وہ کوئی عام بت نہیں تھا، وہ بال تھا، شیطان کا سب سے بڑا اور خطرناک ہتھیار، جسے طاقت، بارش اور زرخزی کا خدا مان لیا گیا۔ لیکن یہ بال آخر تھا کون؟ اس کی پوجا کا آغاز کب، کیسے اور کس نے کیا؟ حضرت الیاس علیہ السلام کو اس سرکش قوم کی طرف کیسے مبعوث فرمایا؟ آج سے ہزاروں سال پہلے شام کے علاقے میں، جسے آج ہم لبنان، شام اور فلسطین کے نام سے جانتے ہیں، وہاں ایک نہایت سرسبز اور شاداب علاقہ آباد تھا۔ یہ علاقہ اپنی خوبصورتی، بہتے چشموں اور لہلہاتے خیتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اس علاقے میں ایک عظیم و شان شہر آباد تھا جسے اس وقت کے لوگ بک کہا کرتے تھے۔ اس شہر کے لوگ بہت خوشحال تھے۔ اللہ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا ہوا تھا، لیکن خوشحالی جب حد سے بڑھ جائے اور دلوں میں اللہ کا شکر نہ رہے تو وہاں شیطان کا داخلہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان نے دیکھا کہ اس قوم کے پاس سب کچھ ہے، زمینیں سونا اگلتی ہیں اور آسمان سے وقت پر بارش برستی ہے۔ اس نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کیے۔ اہل شہر نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک بے پناہ بڑا اور خوفناک مجسمہ تعمیر کیا۔ یہ خالص سونے اور قیمتی دھاتوں سے بنایا گیا ایک دیو ہیکل بت تھا، جس کی لمبائی اور چوڑائی دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ اس کے 4 چہرے بنائے گئے تھے اور اسے انتہائی شاندار انداز میں ایک اونچی جگہ پر نصب کیا گیا تاکہ دور دور سے لوگ اسے دیکھ سکیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ یہی بال بارش برسانے والا خدا ہے، یہی زمین کو زرخیز کرتا ہے اور اسی کے غصے کی وجہ سے قحط پڑتا ہے۔ شیطان کی چال کامیاب ہو چکی تھی۔ اس بت کی پوجا اتنی بڑھ گئی کہ اس پورے شہر کا نام ہی اس بت کی نسبت سے بدل دیا گیا۔ شہر بخ کو اب بال بک کہا جانے لگا، یعنی بال کا شہر۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی لبنان میں اس شہر کا نام بال بک ہی ہے اور اس کے آثار آج بھی وہاں موجود ہیں۔ بلکہ پجاریوں نے معاشرے میں ایک عجیب ظالمانہ نظام قائم کر لیا تھا۔ بادشاہ سے لے کر عام کسان تک سب اس سونے کے مجسمے کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ بل کے نام پر جانوروں کی اور بجے تاریخ روایت کے مطابق انسانوں تک کی قربانیاں دی جانے لگیں۔ معاشرہ ظلم، جبر اور شرک کی تاریخیوں میں مکمل طور پر ڈوب چکا تھا۔ وہ اپنے سچے رب کو بالکل بھول چکے تھے جس نے ان کے باپ دادا کو پیدا کیا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ بل ہی ان کی کائنات چلا رہا ہے۔ جب گمراہی اپنی تمام حدیں پار کر گئی اور زمین پر شرک کا اندھیرا چھا گیا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ پاک نے اس بھٹکی ہوئی اور سرکش قوم کی طرف اپنے ایک نہایت ذلیل القدر اور عظیم پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ ان کا نام حضرت الیاس علیہ السلام تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے طوفان سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام عقیلے اس پوری قوم، ان کے جابر بادشاہ اور بال کے طاقتور پجاریوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے نہایت حکمت اور دلسوجی کے ساتھ ان کو دعوتی حق دی۔ آپ علیہ السلام کی اس عظیم دعوت کا ذکر قرآن مجید نے سورہ صافات میں انتہائی خوبصورت اور واضح انداز میں کیا ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میری قوم، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم اس رب کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو جو خود تمہارا محتاج ہے۔ کیا تم سب سے بہترین پیدا کرنے والے کو، سب سے عظیم خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ وہ اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے ان باپ دادا کا بھی رب ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی یہ پر اثر اور سچی آواز جب اس معاشرے میں گونجی تو بال کے پجاریوں کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ ان کے جابر بادشاہ اور طاقت کے نشے میں اندھے سرداروں کو یہ بات کسی صورت قبول نہیں تھی کہ کوئی ایک شخص آ کر ان کے دیوتا کو جھوٹا کہے اور ان کے صدیوں پرانے رسم اور رواج کو باطل قرار دے۔ اس وقت کا بادشاہ اور اس کی بیوی جو بال کی کٹر پجارن تھی، انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی سخت مخالفت شروع کر دی۔ وہ طاقت کے نشے میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ان کے سونے اور چاندی سے بنے اس عظیم الشان دیوتا کی در حقیقت کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کملے اپنے نبی کی بات ماننے کے بجائے ان کو دھمکیاں دینا شروعات کر دی۔ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنے شہر سے نکالنے اور جان سے مارنے کی سازشیں رچنا شروع کر دی۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ جس جھوٹے دیوتا کی طاقت پر یہ قوم اتنا غرور کر رہی ہے،
इसी की बेबसी आज इनकी आंखों के सामने लाई जाए। अल्लाह की तरफ से हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को ये वही हुई कि वो इस सरकश कौम के बीच से निकलकर एक महफूज मकाम पर हिजरत कर जाएं। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से इन बस्तियों से निकलकर पहाड़ों और गारों की तरफ चले गए और पीछे इस मगरूर कौम पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसने इनकी सारी चमक दमक खाक में मिला दी। बल्कि पुजारियों का सबसे बड़ा दवैया था कि इनका मुजस्समा बल बारिश का खुदा है। अल्लाह ने इसी शर्क को बातिल साबित करने के लिए आसमान को हुक्म दिया कि इस कौम पर बारिश का एक कतरा भी न बरसे। देखते ही देखते वो इलाका जो अपनी बेपनाह जरखजी, बहते मीठे चश्मों और हरे भरे बागात के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, एक खुश्क और बंजर सहरा में तब्दील होने लगा। 1 साल गुजरा, आसमान से बादलों का कोई टुकड़ा ना गुजरा। दूसरा साल गुजरा, जमीन प्यास से फटना शुरू हो गई, चश्मे खुश्क हो गए और खेतों में उगने वाली फसलें सूख कर राख का ढीर बन गईं। वो लोग जिनके पास अनाज के भरे हुए गोदाम थे, आज वो दाने दाने को तरसने लगे और इनके जानवर प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। ये वो वक्त था जब बैल के पुजारी दीवानावार अपने सोने के मुजस्समे के सामने गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने अपने झूठे देवता के सामने दिन रात सजदे किए, तरह तरह के चढ़ावे चढ़ाए और रो रो कर मीनते मांगे कि आसमान से पानी बरसे। लेकिन भला पत्थर और धात के बने हुए बेजान बुत किया सुन सकते हैं? दूसरी तरफ अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को इस खौफनाक कैद में तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह की कुदरत देखिए कि जिस बस्ती में इंसान और जानवर भूख व प्यास से मर रहे थे, वहां अल्लाह ने अपने नबी की खुराक का गैबी इंतजाम फरमाया। गरम क़याम के दौरान इन्हें अल्लाह की तरफ से रिस्क मिलता रहा, क्योंकि अल्लाह अपने नेक और सच्चे बंदों की हिफाजत करना खूब जानता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इस कौम की सरकशी और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की सच्चाई को बड़ी सराहत के साथ बयान किया है। सूरह साफात में अल्लाह पाक वाज़े तौर पर फरमाता है कि उन्होंने इलियास को झुटलाया तो बेशक वो अजाब में पकड़े हुए हाजिर किए जाएंगे, सिवाय अल्लाह के इन बंदों के जिन्हें चुन लिया गया। इस आयत में इस कौम के भयानक अंजाम की तरफ खुली दलील है कि जिन्होंने अपने सच्चे खालिक को छोड़कर शैतान के बनाए हुए बुतबाल को पुकारा, इनका अंजाम दुनिया में भी रुसवाई था और इनके लिए सख्त अजाब मुकर्रर कर दिया गया। गद की इस हौलनाक शिद्दत ने कौम के तकब्बुर को रेजा रेजा कर दिया। जब मौत इनके दरवाज़ों पर दस्तक देने लगी और इनका खुदा बाल इन्हें बचाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया, तो इनमें से कुछ लोगों को ये एहसास होने लगा कि वाकई वो एक बहुत बड़े धोखे और शैतानी जाल में फंस चुके हैं। शैतान का वो तिलिस्म जो उसने इस मुजस्समे की सूरत में बांधा था, अब बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। इन पर यह हकीकत खुलने लगी थी कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का रब ही सच्चा रब है। क़ैदा और खुश्क साली के इन 3 तवील और खौफनाक सालों ने आखिरकार बाल के पुजारियों का गुरूर खाक में मिला दिया। जब भूख और प्यास ने इनकी बस्तियों को मौत के घाट उतारना शुरुआत किया, तो इन पर यह हकीकत पूरी तरह आशिकार हो गई कि इनका दीवता बिल्कुल बेबस है। वो सोने का दहैकल मुजस्समा, जिसे वो कायनात का निज़ाम चलाने वाला समझते थे, एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखता था। आसमान से बारिश बरसाना तो बहुत दूर की बात थी। तारीख बताती है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की सच्चाई सबके सामने आया हो गई, हक वादी हो गया और बातिल का सर हमेशा के लिए झुक गया। बल्कि पूजा करने वाले जलील खार हुए और वो अजीम शान बुत जिसके सामने कभी मुतकब्बिर बादशाह सजदा करते थे, अपनी तमाम तर चमक दमक के बावजूद जमीन बोस हो गया। अल्लाह की कुदरत और इसके सच्चे नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से बिलखिर आसमान से रहमत की बारिश बरसी। लेकिन ये बारिश सिर्फ इन लोगों के लिए हिदायत और जिंदगी लेकर आई जिन्होंने सच्चे रब को पहचान कर तौबा कर ली थी। बाल बक का वो ताकतवर बादशाह, इसकी जालिम बीवी और इसके मगरूर सरदार सब इबरत का भयानक निशान बन गए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। शैतान, जिसने रोज़े अव्वल से इंसान को गुमराह करने की कसम खा रखी है, उसने अपनी इस शिकस्त को तस्लीम नहीं किया, बल्कि मुजस्समा तो टूट गया और मिट्टी में मिल गया। लेकिन शैतान ने गुमराही की इस सोच को मरने नहीं दिया।
इब्लीस ने यह जान लिया था कि शायद अब इंसान किसी पत्थर या सोने के मुजस्समे के सामने इस तरह यालानिया सजदा ना करे। इसलिए उसने इंसान को भटकाने का अपना तरीक़ाकार मुकम्मल तौर पर बदल लिया। शैतान ने अपने पुजारियों को छुपकर तरीकियों में काम करने का रास्ता दिखाया और बिल्कुल यहीं से इन खुफिया ताकतों और शैतानी तंजीमों का आगाज़ हुआ, जिन्हें आज की दुनिया में हम पोशीदा हुकूमतें, इल्यूमिनाटी, फ्रीमिसन्स या शैतानी हल्के सेटानिक कल्ट्स कहते हैं। आज के इस बज़ाहिर पढ़े लिखे और इंतहाई जदीद दौर में अगर कोई ये समझता है कि बाल की तारीख़ पुरानी हो चुकी है और शैतान की पूजा ख़त्म हो गई है, तो ये हमारी सबसे बड़ी और ख़तरनाक भूल है। हकीकत तो ये है कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग और निहायत ताकतवर खुफिया तंजीमें मौजूद हैं जो इंतहाई बाकायदगी के साथ शैतान की पूजा करती हैं। ये लोग आज के दौर के बाल के पुजारी हैं या वो लोग हैं जो दुनिया के महाशी निज़ाम, आलमी सियासत और मीडिया की ताकत पर मुकम्मल तौर पर काबिज होना चाहते हैं। उन्होंने आज मादी ताकत, बेतहाशा दौलत, बेहयाई और फहाशी को अपना नया दीवता बना लिया है। इन खुफिया ताकतों का असल मकसद आज भी बिल्कुल वही है जो हज़ारों साल पहले शाम के इलाके में था, यानी इंसान को अल्लाह के रास्ते से हटाना, इसके दिल से आखिरत का खौफ निकालना और इसे शैतान का गुलाम बनाना। ये लोग आज भी अपनी खुफिया और अंधेरी महफिलों में शैतान को खुश करने के लिए वही पुरानी जालिमाना रस्में अदा करते हैं और इन्हें शैतानी अलामतों का इस्तेमाल करते हैं जो कदीम दौर में बाल के पुजारी किया करते थे। सेंगों वाले देवता की तस्वीरें, एक आँख का निशान और ऐसे बेशुमार शैतानी अलामात आज भी इन खुफिया ताकतों की पहचान है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज का बाल कोई एक धात का मुजस्समा नहीं है, बल्कि या वो पूरा दिलफरेब शैतानी निज़ाम है जो निहायत खामोशी से हमारे इर्द गिर्द बछा दिया गया है। हमारे मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट, फिल्मों और मीडिया के ज़रिए ये खुफिया ताकतें हमारे मुआशरे और ख़ास तौर पर हमारी आने वाली नस्लों के ज़हनों को कंट्रोल कर रही है। ये ताकतें निहायत मनसूबाबंदी के साथ हमें हमारे दीन, कुरान मजीद और सुन्नत रसूल से दूर करके एक ऐसे तबाह को रास्ते पर धकेल रही हैं जिसकी आखिरी मंजिल सिर्फ और सिर्फ जहन्नम की आग है। आज के शैतानी पुजारियों ने इंसान के दिल से इसके सच्चे खालिक का तस्वुर मिटाने के लिए हर वक्त जदीद और नफ्सियाती हथकंडा इस्तेमाल किया है जो इब्लीस ने इन्हें सिखाया है। वो दुनिया को ये झूठा सबक पढ़ा रहे हैं कि इंसान मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, वो खुद अपना खुदा है और इसे किसी आसमानी किताब या हिदायत की कोई ज़रूरत नहीं। यह बायने वही तकब्बुर और वही सोच है जिसने बाल बक के लोगों को तबाही के घाट उतारा था। तारीख़ दर हकीकत आज फिर अपने आप को दोहरा रही है। कल इंसान के सामने बल का बुत था और इसे बचाने के लिए हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की सच्ची और हक़ पर मबनी आवाज़ थी। आज हमारे सामने ये निहायत ताकतवर खुफिया शैतानी कुतें और इनका बछाया हुआ फरीब का जाल है, लेकिन हमारे पास इस अंधेरे से निकलने के लिए अल्लाह की आखिरी और सच्ची किताब कुरान मजीद और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन और मुबारक सुन्नत हर वक्त मौजूद है।